मोटरवे ज्यादती केस का जो मरकजी मुलजिम है आबिद, वो एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, चौथी मरतबा पंजाब पुलिस को चकमा देने में कामयाब हुआ है। यानी शाहिदीन बताते हैं कि वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा यहाँ पर मौजूद रहा है और अपनी साली किश्वर से 20 से 25 मिनट गुफ्तगू की। जो उसकी साली हैं वो आबिद के बारे में क्या इंकशाफात करती हैं। आके मेरे लागे भी मैं आबिद हां, बोली ना मेरे पार्क के जा मेरे नाल। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। मोटरवे ज़्यादती केस को शुरू से लेकर अब तक हम कवर करते आए हैं और हमने आपको वो पहलू भी दिखाए हैं जो आपके सामने नहीं थे। आज मैं मौजूद हूँ ननकाना साहब और यहाँ पर मेरे बिल्कुल राइट साइड पे ये जो पार्क है, कल यहाँ से मोटरवे ज़्यादती केस का जो मरकज़ी मुलजिम है आबिद, वो एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, चौथी मरतबा पंजाब पुलिस को चकमा देने में कामयाब हुआ है। और ये पार्क है और लेफ़्ट साइड पे ये जो मैं आपको ये मेरे जो मोहल्ले नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आके जो यानी शाहिदीन बताते हैं कि वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा यहाँ पर मौजूद रहा है, यहाँ पर थड़े पर बैठा रहा, यहाँ पर चाय पी और अपनी साली किश्वर से उसने 20 से 25 मिनट गुफ्तगू की। उस गुफ्तगू में उसने क्या कहा था और जो उसकी साली हैं वो आबिद के बारे में क्या इंकशाफात करती हैं, आइए उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। कल के टाइम ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਬਦ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 3 ਮਰਤਬਾ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਬਿਦ ਹਾਂ, ਬੋਲੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਮੈਂ ਆਬਿਦ ਹਾਂ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਕ ਕੇ ਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਕਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਛੇਤੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਫੋਨ ਕਰਵਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਨ ਭਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਆਈਆਂ ਉੱਥੇ ਖਲਾ ਮਸਜਿਦ ਕੋਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਵੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਔਰਤ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਪਈ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਲ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨੇ ਛੋਟੇ ਕਰਾਏ? ਛੋਟੇ ਵਾਲ ਨੇ, ਦਾੜੀ ਮੁੰਨੀ, ਮੁੱਛਾਂ ਮੁੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਆ ਸਾਰੀ ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਮੁੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਦਾੜੀ ਵੀ ਮੁੰਨੀ ਹੋਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਹੁਲੀਆ, ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਖੁੱਲੇ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਾਈ? ਹਾਂ, 15 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, 15 ਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੜੇ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੀਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਰਾ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗਈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਆ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਬੈਠਾ ਐ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਫੜੇ ਤੇ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ। ਆ ਇੰਨਾ ਫਾਸਲਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰੀ, ਯਕਦਮ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਈ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆ ਆਬਿਦ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਫੋਨ ਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਆਬਿਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜੋ ਸਕਿਆ ਆ ਆਬਿਦ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਉਸ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਵੀ ਆਇਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਵੱਜਿਆ, ਉਹ ਛਲਾਂਗ ਵਸਲਾਈ। ਕਿੱਥੇ? ਪਿੱਛੇ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਛਲਾਂਗ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟੇ ਜੇ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਛਲਾਂਗ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇ ਮਗਰ ਪੁਲਿਸ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਆਬਦ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਆਬਦ ਨੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ? ਤਾਂਦਲੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਬੁਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੱਚੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ
तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕੀ ਗਿਆ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪੇ ਦੇ ਕਿ ਕੋਲ ਸੀ ਗਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਆਇਆ ਅਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਹਾਂ ਪਿਸਟਲ ਅਸਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੱਸੇ ਸੀ ਨਾ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੰਗ ਰਹੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੱਕਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਉਸ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਅਸਲਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਫਰਾਂ ਕਰਦਾ ਨੱਸ ਗਿਆ ਇਹ ਆ ਨਾ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ ਆਬਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਲੰਘਿਆ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਤਾਂਦਲੇ ਵੀ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਘਰ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਕੜਾ ਹੈ ਬੁਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਕੜਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਪਿਸਟਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਲੱਗਾ ਉਸ ਪਿਸਟਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ठीक है ਉੱਥੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸ਼ੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਪਿਸਟਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜਾन बचाई निकल गया राय बुलर पार्क जो ननकाना में है यहाँ से चौथी मरतबा जब आबिद फरार होता है तो एनी शाहिदीन क्या कहते हैं आपका नाम जावेद है आप यहाँ पर क्या मौजूद थे क्या कर रहे थे यहाँ पे हम मौजूद थे बैठे हुए थे तो पार्क में वैसे दोस्तों के साथ हम बैठने आते हैं शाम को भी इस टाइम जब दोपहर है इस टाइम भी बैठने आते हैं तो आबद नामी जो शख्स है 15 पे कॉल चलने के बाद जब मोहल्ले वालों से हमें पता चला है आबद नामी शख्स वो पार्क के अगली साइड पे था जब SHO सिटी खालिक साहब आए हैं और 4 जवान उनके साथ थे उन्होंने पार्क का ये गेट लगा हुआ था ये जो फ्रंट गेट है ये लगा हुआ था उन्होंने दीवार फलांगी उसके पीछे भागे हैं राय बुलाल भट्टी की कब्र के ऊपर ये सीढ़ियाँ जाती हैं और जब वो सीढ़ियों के ऊपर भागा है और जवान 4 से 5 जवान उस लड़के के पीछे भागे हैं पकड़ने की कोशिश की है जबकि ये कब्रिस्तान बहुत बड़ा है वीरान कब्रिस्तान होने की वजह से वो अंदर घने जंगल में चले गया उसके बाद पुलिस को वो नहीं मिला पुलिस उसके पीछे भागी है उसने हमें भी लोगों को भी कहा इसको पकड़ो जब हम उसके पीछे भागे हैं वो नहीं पकड़ हुआ किसी से लोग पीछे भागे और पुलिस भी भाग में कुछ 6-7 सिविलियन थे और 10 जवान जो अपने पुलिस के थे SHO खालिक साहब के साथ उन्होंने बहुत कोशिश की उसे पता चला कि आम लोग भी उसके पीछे भाग जी जब पुलिस ने कहा ना कि इसे पकड़ो ये मुलजिम है उसके बाद खालिक साहब के साथ आम सिविलियन लोग भी उसे पकड़ने गए हैं लेकिन पहले लोगों को नहीं पता था ये कौन है यहाँ पर वो आगे फिरता रहा घूमता रहा जी उससे पहले नहीं पता था ये कौन है कौन नहीं है लेकिन जंगल वीरान कब्रिस्तान बहुत बड़ा है ऊपर जंगल है बहुत घना उस वीरानगी की वजह से वो मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गए कितनी दूर तक पीछे जाते रहे और यहाँ पर कुछ सर्च ऑपरेशन भी हुआ है रात को सर्च ऑपरेशन हुआ है दोपहर को भी हुआ जो दोपहर का सर्च ऑपरेशन है उसके साथ मैं था DPO साहब थे DSP साहब थे SHO सिटी थे DC साहब DC ननकाना कितना बड़ा कब्रिस्तान है ये मैक्सिमम मेरे ख्याल में कुछ 10 या 12 एकड़ के राउंड बाउंड ये कब्रिस्तान इसमें कोई छुपना चाहे तो छुप सकता है इजीली छुप सकता है मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम आबिद किस तरह से यहाँ पर आता है किस तरह से फरार होता है आपने ये सारी कहानी उसकी साली की ज़ुबानी भी सुनी लेकिन यहाँ पर सबसे पहले से रिपोर्ट करने वाले जो मुकामी सहाफ़ी हैं आसिफ इकबाल साहब और एनी शाहिदीन से भी हमारी बात हुई है आसिफ इकबाल साहब हम ठीक उस जगह पर मौजूद हैं ये पार की दीवार है और बिल्कुल इसके पीछे कब्रिस्तान है जिस तरह से वो यहाँ से फलांग कर भाग जाता है ये सारी जो डिटेल है इन्होंने क्या देखा क्या हकाइक हैं आसिफ इकबाल साहब की ज़ुबानी आसिफ साहब हुआ क्या कब आया कितनी देर रहा पुलिस के इदारे इतने चौकन्ना थे नहीं थे क्या हुआ असल में फ़रूक भाई यहाँ पे जो हमारी बात हुई है जब यहाँ पे हम मौके पे पहुँचे हैं यानी शाहिदीन से या जो उनके मुताबिक तो वो यहाँ पे तकरीबन 2 घंटे से भी ज़ायद वक्त यहाँ पे उसने गुजारा है क्योंकि वो जो उसकी जो साली है किश्वर बीबी उसके पास ना तो उसके साथ कोई कम्युनिकेशन का कोई रब्ता कोई फ़ोन था या कुछ था वो उसकी गली में बैठा रहा है कई लोगों ने यह भी कहा है कि वहाँ पे एक टी स्टॉल है वहाँ से शायद उसने चाय भी पी है लेकिन ये गैर मुसद्दक़ा एक बात है लेकिन वो टी स्टॉल वाला इस बात को नहीं मानता लेकिन एनी शाहिदीन ने कहा कि वहाँ पे वो मस्जिद के बाहर बैठा रहा है अपनी साली का इंतज़ार करता रहा है गली में घूमता रहा है उसको ढूंढने के लिए भी वो नज़र आए कहीं 1-2 दफ़ा उसने उसे इशारा भी किया है उसको लेकिन उसका हुलिया जो बदला हुआ था जिसकी वजह से उसकी साली उसको पहचान ना पाई साली पहचान नहीं पाई तो कोई नहीं उसे पहचान सकता कोई भी आम बंदे को तो पता ही नहीं था उसकी साली ने उसको पहचाना ना उसने 2-3 दफ़ा उसको इशारा किया वो इस दौरान फिर वहाँ पे बैठा रहा मस्जिद के पास इंतज़ार करता रहा तकरीबन मेरे ख्याल में 2 से ढाई घंटे वो ननकाना की ये जो गली है
जिसको पुराना ननकाना की एक गली है, वहाँ पे वो घूमता रहा, बिल्कुल फिरता रहा, बैठा रहा। फिर उसके बाद जब उसकी साली को उस जा रही थी बाज़ार किसी काम से, तो उसने उसे बुलाया, जैसे कि आपने बात भी की है उनसे, उन्होंने उसे बुलाया, उसने कहा कि मेरी बात सुनो, मैं आबिद हूँ, अब तुमने बोलना नहीं, मुझे पार्क में आके मिलो। वो वहाँ से कह के ये जो गली है यहाँ से पार्क, ये बुलार जो पार्क है इससे मुल्का, आबिद वहाँ से आ गया इधर को, और उसकी साली जो है वो वापस चली गई है। वापस जाके उसने जो भी अपनी पुलिस को इतला दी या किसी को बताया या जो भी किया, उसके बाद वो जब यहाँ से घूम के वापस आई, ये दुरानिया मेरे ख्याल में जो 15 पे कॉल चला दी यहाँ पे एक शहरी ने कि यहाँ पे आबिद आया है, वो तकरीबन इस 15 कॉल के तकरीबन आधे घंटे बाद वो पुलिस जो है यहाँ पे पहुंची है। इस दौरान वो उसकी अपनी साली के साथ बातें करता करता एग्जैक्ट इस पॉइंट तक पहुंच गया। इस पॉइंट पे हम खड़े हैं, इसी पॉइंट पे वो मौजूद था। वो जो गेट है वहाँ पे उसकी साली ने कहा कि अंदर बैठते हैं, लेकिन उसने कहा नहीं, मेरे पीछे पुलिस है, अंदर नहीं जाना। वो वहाँ से बातें करता करता यहाँ पे आकर पहुँच गया। यहाँ से पहुँचा तो इस तरफ से जो एन शाहिदीन है उनके मुताबिक पुलिस आई है, थाना सिटी का डाला था, SHO थाना सिटी, उसमें बाबा अब्दुल खालिक साहब, साथ 2 कांस्टेबल और ये 3-4 बंदे यहाँ पे आए हैं। मेरे ख्याल में जो उसके फ़रार होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि पुलिस ने इसको बेहतर तरीके से मैनेज नहीं किया, सीरियस नहीं लिया। सीरियस नहीं लिया, इंतहाई गैर संजीदगी का उन्होंने मुजाहरा किया है। 25 मिनट या 30 मिनट के बाद पुलिस आ रही है, अगर यहाँ पे वो कोई वैसे रेड करना होना कोई जुएगा तो पुलिस को पूरा इंतजाम करके आती है तो पकड़। इतना हाई प्रोफाइल मुलजिम था, लेकिन मेरे ख्याल में पुलिस ने इसको सीरियस नहीं लिया। 4 अफराद आए उसको लेने के लिए। 4 SHO के साथ 2 कांस्टेबल आए हैं जो पीछे बैठे थे। यहाँ पे आके एग्जैक्ट उन्होंने अपनी गाड़ी को रोका है। एक कांस्टेबल नीचे उतरा है तो जो कॉलर था उसने कहा ये है जी आबद। जब उसने कहा ये आबद है, यहाँ पे वो कांस्टेबल खड़ा है, यहाँ से वो फलांग के आबिद साहब सीधा कब्रिस्तान पे चले गए। यहाँ पे जो मकामी लोग थे 2-3 वो उसके पीछे भागे हैं कि पता नहीं कौन है, क्या बात है, लेकिन वो जब तक ऊपर चढ़ गए। ये जो कब्रिस्तान है ये बिल्कुल वीरान है, बहुत अंदर से बहुत बड़ा है और वीरान है, और ये इसमें सुरंगें हैं, इसमें कब्रें, यानी कि किसी भी आदमी का गायब होना बड़ा आसान है। बहुत आसान है किसी का छुपना। उसके बाद फिर पुलिस यहाँ पे आई है और उसने फिर रात को भी कुछ सर्च ऑपरेशन किया थोड़ा बहुत, और फिर वो यहाँ पे ढूंढते रहे, कॉर्डन ऑफ किया रखा है, लेकिन वो फिर उसके बाद यहाँ से हाथ से निकल गया। ऐसे इधर इलाके में क्या खौफ और राज की कैफियत है? लोग बात कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल बहुत ज़्यादा खौफ और रास है, ख़ास तौर पे वो जो फैमिली है जिसके साथ वो मिला था, उसकी साली, उसके घर वाले, उसके जिस बंदे ने फ़ोन पे पुलिस को इतला दी, इस वक्त वो बिल्कुल खौफज़दा हैं, बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं। इतने खौफज़दा हैं कि वो अब बात भी करने पे तैयार नहीं, बहुत मुश्किल। खबरें तो ये भी आई कि वो हिरासत में ले लिया गया था इन्हें। बिल्कुल, जब रात को मैंने खबर ये ब्रेक की है, खबर ब्रेक होने के बाद फिर वो DPO आए हैं यहाँ पे, उन्होंने उनको उनकी फैमिली को दोबारा पुलिस ने उनको पकड़ा है और पकड़ के फिर वो लेके गए हैं। वो जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हैं इस्माइल खाड़क, उन्होंने वहाँ पे उनके बयान शयान लिए हैं या उनसे पूछा है दोबारा से फिर सारी बात। सारे मामले के बाद यहाँ पर इंतजामात बेहतर कर लिए गए हैं क्या? अभी जो फ़रूक मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सिविल कपड़ों में पुलिस एहलकार तो तैनात हैं, उसके घर के इर्द गिर्द भी पुलिस की जो नफरी सिविल कपड़ों में मौजूद है, लेकिन वो जो जैसे इंतजामात देखने में आ रहे हैं कि जैसे होने चाहिए थे, अगर पुलिस इस बात को पकड़ना चाहती उसको रात को भी पकड़ा जा सकता था मेरे ख्याल में। अगर सुबह भी इसको अगर एक जिस तरह से वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का फौरी तौर पे आगाज़ किया, अगर यहाँ पे भी होता ना लाहौर में वाक़ई बात, तो मेरे ख्याल में उसका निकलना यहाँ पे इतना आसान नहीं था। अच्छा, ये जो कब्रिस्तान है, पुराना कब्रिस्तान है, ये निकलता कहाँ पे है, किस तरफ इसका रास्ता निकलता है? डेफिनेटली ये कुछ शहर इतना बड़ा नहीं है, यहाँ से कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है या पैदल चल के कोई मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, कौन से गाँव तक जा सकता है? एनी शाहिदीन या कोई लोग या सोर्सेज क्या कह रहे हैं? जी फ़रूक, यहाँ पे ये जो कब्रिस्तान है, ये डॉलर वाला कब्रिस्तान इसको कहते हैं। ये जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक पहाड़ है ऐसे, इसको ये 4 तरफ से ये रास्ते लगते हैं। एक इस तरफ इसके मियाँ मीर की बस्ती है, वो इलाका लगता है। फिर इस राइट साइड पे मगरब की जानिब आप जाएँ तो इसको चीदी कोट, वो भी एक गाँव है, वो लगता है। फिर वो आगे से वो गाँव चले जाते हैं, ये बुचे की रोड पर चला जाता है। यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि मेरे ख्याल में वो इतने दिन से भागा हुआ है, फिजिकली भी उस थका हुआ होगा, सवारी भी नहीं है, पैदल वो नहीं इतना भाग सकता था। अगर पुलिस थोड़ा सा एक्टिव रोल किरदार करती तो उसको पकड़ा जा सकता था। भी इस हदूद से निकलना बहुत ज़्यादा देर, तो अगर कल का भी ये वाक़या है तो क्या कितने गाँव पैदल चल के जा सकता है? क्या मेरा नहीं ख्याल कि अभी भी वो कहीं बाहर दूर गया होगा। मेरे ख्याल में अभी भी वो यहाँ पे ननकाना की हदूद में ही कहीं छुपा पड़ा हो। ये भी हो सकता है कि ये जो कब्रिस्तान है यहीं पे कहीं छुपा हुआ हो अभी भी, क्योंकि ये बहुत इसमें छुपना बहुत आसान है। अब तक की जो सारी कार्रवाई है हमने आपको दिखाई है,
मरकज़ी मुलजिम अभी तक मफरूर है, पुलिस को चकमा देने में 4 मरतबा कामयाब हो चुका है। और यहाँ के ऐनी शाहिदीन चौथी मरतबा यहाँ से वो फ़रार हुआ, उससे पहले आपको सारा रिपोर्ट करते रहे हैं। अभी तक सवालिया निशान है इदारों के ऊपर, इतना हाई प्रोफाइल केस है, लेकिन मुलजिम अभी तक आज़ाद है। अपने मेज़बान फ़रूख शहबाज वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।